Okay, in today's short video, we will talk about how to start reading IELTS. It's the introduction to the reading test and the tips that I often provide in the early class of of my IELTS reading class. It's for the students of both academic and learning because most of the general students uh, need to follow the academic text at an early age or early stage of the preparation. I'm going to screen share the test and I will tell you that how it should work. So if you can experience IELTS reading. The IELTS reading is a task which is considered to be the second task after listening, and it is often seen as the most difficult task. It's because it is based against the time, so you have to follow the time. And for each passage, you have 20 minutes. For overall test, you have around 60 minutes. And since it's on computer, so you have a timer going on the screen. So that is the benefit of having this test. Now, another thing is that if you look at IELTS reading, so we have to be aware of two things. Number one is IELTS reading is mainly about text and the question. Number two is IELTS reading has a variety of questions, and the text can be about anything. So it's not the specialized text that you expect that it should come from the field. So that is something which is which makes it difficult. Most common question that the student asks is how, we don't know, we don't have the knowledge of how can we grasp that particular text. For example, if a doctor is sitting for IELTS and asking for the test and sees the test about engineering or psychology or literature, how would you do it? So my answer is very simple that the test assesses your reading comprehension, not your knowledge. So every answer and everything lies in the text, but it is always the text versus the question. You have to understand the theory. The theory is very simple, that you don't have to worry about the depth of the text. You have to rely on questions. So there are basics that a student should understand about IELTS. Number one is, when you do the test, when you start the test, you have to divide. You have to be time disciplined, even if you are preparing your test and doing a practice. So be time disciplined. To start your test in simulation mode. Simulation is very important because if you do the practice in practice mode, you can change the time. But if you do your practice in simulation mode, you don't have the time control. So you carry on with the reading and you have to do the reading. You have to do all three passages and 40 questions within time. So in the IELTS, as an introduction, let me introduce you to test pattern. So I'll show you the manual test, that how the books carry the test, and I will also show you from my website that how it looks like when you do the IELTS test. So you can go to the IELTSlisting.com. So you have to have your email ID and you have to have your account. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Yeah, I'm introducing reading, Daniel. So it will be recorded lecture and you will also get the recording of it as well. सर आपकी Okay. आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों. Adil, is it okay with you? Because on when I check the recording, it's fine. The volume is fine. सही ऐसा हो सकता है कि मे बी रिकॉर्डिंग जब हो उसके बाद सही हो. अभी तो मुझे स्लो आ रही है थोड़ी, मतलब लो वॉल्यूम. Okay, let me check with the volume. Hello, hello, hello. Okay. So hello, hello, hello. It's fine. Thank you. सर अब बेहतर है, बेहतर है. Okay. So let's go ahead with the reading. So we have here login. I already have the
login detail that I have. So you go to library, you select test, and you can use Ingovet. There's another website. You can pick up any test. For example, let's click. Now this is there. So even if you are practicing for the first time in your life, I would recommend you to go for the simulation mode. Simulation mode is very, very important because it gives you the exposure of the complete test or the original test. But if you do it in the सर practice एक mode, क्वेश्चन था मेरा। जी, सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो स्टिमुलेशन टेस्ट मोड जो है, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आइल्स की तरह जो है वो पूरे जी बिल्कुल, क्वेश्चंस आते हैं, रिकॉर्डिंग जैसे लिसनिंग में है, सब कुछ। एग्जैक्टली सेम है? जी, ये आइल्स के टेस्ट ही हैं जो आपके पास वेबसाइट, दे आर जैसे ओरिजिनल। उसमें बताते हैं ना स्टार्टिंग में दैट इनिशियली वी विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ यस, वन आंसर it is एंड like यू that. हैव टाइम टू रिकॉल, इस तरह से। It is like that. I think it's that. ओके ओके सर। Okay. So when you click on this, so there you go. So on the left side of the page, you will have the text. On the right side of the page, you will have question. So, in the manual test, you have to flip the pages. Here, you don't even have to flip the pages. So you go easy with that. So सर हाउ मेनी, देयर आर 13 पेजेस? no, this it's not about pages. I think you missed the first part of today's class. I told you that there are three passages: passage one, passage two, and passage three. In total, 40 questions. So the first two passages carry 13 questions, and the last passage carries 14 questions. So in total, you have 40 questions. श्योर सर। Okay. So what we do is today we are just going to look at the early tips for learning how to start our practice, how to do the test. So it is as simple as that. You can also see the timer over here. Okay, let's get back to this. So what are the first thing that a student should know of before they start practicing the test? Number one, they should know that they have only 1 hour, not a single second. Number two, they have passages and you know they have passages and they have the questions. Number three, the question types are multiple, so it's not just one type of a question. Within one passage, you can have two, three, four types of questions. Number four, for each passage, you have 20 minutes. I would recommend you to cut it into 18 and 19 minutes. When you do the practice, make sure that you have 2, 3 extra minutes left at the end. So can you review your all answers? So you do your practice in 18 minutes and 19 minutes. So three passages should be given. Now, what are the basic pieces of advice? सबसे बेसिक पीस ऑफ एडवाइस मेरी कुछ इस तरह की होती है, मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ। नंबर वन, ऑलवेज डू द टाइम डिसिप्लिन। मतलब टाइम डिसिप्लिन होके करें, कभी भी एक पैसेज पर ज़्यादा टाइम ना लगाएं। जितना टाइम लगाना है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही टाइम लगाएं, यानी 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करें और चले जाएं। लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। So to always start with a time discipline, time oriented practice. Never exceed the time. Never also reduce the time or by your wish. Take your time to have 18 to 19 minutes to 13 questions. For each question, you have 1.5 minutes, 1.5 minutes, 1.5 minutes. So you do it really very well. So don't worry about it. So within 1.5 minutes, you can reach the test. You can do the passage within time. Now, third piece of advice. First was about do it in simulation. Second is about time discipline. And the third is about when you are doing the test, make sure you complete the test within 1 hour. Means in one sitting you do the complete test so that you understand the pressure of that. Now my सर एक क्वेश्चन है। third piece of advice. Okay, please go ahead. सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि जब जैसे हम टेस्ट में बैठते हैं तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कौन सा होता है, फिर सेकंड कौन सा होता है, मतलब एक साथ ही होता है ना 3 मॉड्यूल्स तो? जी 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 बेटा, देखो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा लिसनिंग होता है। मैंने पहले लिसनिंग कराई थी, फिर रीडिंग होता है, फिर हम्म। राइटिंग होता है। इस तरह होता है। ये ओके देखो, लेट मी शो ओके। यू। आपको मैं टेस्ट में दिखा भी सकता हूँ। देखो ये टेस्ट शुरू हुआ लिसनिंग से।
लिस्टिंग 30 to 40 मिनट्स की एंड होती है। जैसे ये एंड होगी 1 मिनट बाद आपके पास रीडिंग आ जाएगा स्क्रीन पर। फिर आपके अच्छा, 60 नो मिनट्स गैप हो, इन बिटवीन। नहीं कोई गैप नहीं होता। फिर ये पूरा रीडिंग होगा आपका, 1 घंटे तक रीडिंग होगा। जैसे ही 60 मिनट होंगे रीडिंग खुद ही स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। और उसके सही बाद है, फिर उसके बाद रीडिंग 40 मिनट्स और राइटिंग 40 मिनट्स। फिर राइटिंग आपकी 1 आवर की आएगी, 20 मिनट्स की दिस टास्क। ये जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था आप लोगों को, आप थे उस क्लास में जो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी मैंने। जी जी जी। और 60 मिनट्स का ये टास्क। उसके बाद आपकी लिसनिंग होगी, स्पीकिंग होगी सॉरी। स्पीकिंग तो सर उसी 1 दिन टाइम पहले, होगी या थोड़ा गैप? या तो 1 दिन पहले हो जाएगी, 2 दिन पहले हो जाएगी, या टेस्ट के फौरन बाद 1 घंटे बाद होती है। सही है सर। सही है, क्लियर। अच्छा, जी हम जी रीडिंग सर। पे बात कर रहे थे, तो मैं रिपीट कर देता हूँ रीडिंग की जो पीस ऑफ एडवाइस मैंने दिए थे कि भाई व्हेन यू आर डूइंग द रीडिंग, नंबर वन फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस इज दैट डू इट इन अ सिमुलेशन मूड। नंबर टू इज बी टाइम डिसिप्लिन, मतलब आपने 60 मिनट्स में 20 मिनट्स में एक हर पैसेज को उसका ड्यू टाइम देना है। द थर्ड इज दैट कि आपने अपने टेक्स्ट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी, बल्कि अपने क्वेश्चन ओरिएंटेड रहना है। ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन पहले ओरिएंटेड सर रहना। क्वेश्चन पढ़े फिर टेक्स्ट। जी बिल्कुल, पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर टेक्स्ट देंगे। हर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। इज इट क्लियर? तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ें जी सर। फिर टेस्ट पढ़ें। तो ये बेसिक पीसेस ऑफ एडवाइस होते हैं जो मैं स्टूडेंट को देता हूँ। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप आप देख लें कि भाई हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अपनी रीडिंग को करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पैसेज 2 और 3 की फिक्र छोड़े, आपके पास है पैसेज 1। पैसेज 1 के अंदर आप सबसे पहला स्टेप आप क्या देखेंगे कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ माय पैसेज एंड देयर इज सब टाइटल। तो पहले मिनट के अंदर आपने 1 मिनट के अंदर टाइटल, सब टाइटल और पहला पैराग्राफ पढ़ लेना है 30 सेकंड के अंदर। उससे ये होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, यू विल हैव एन आइडिया कि यू नो व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, ये पैराग्राफ क्या है। हालांकि मैंने ये कहा है कि आपने क्वेश्चन डिपेंडेंट रहना है, वही बात सच है, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई प्रीव्यू जरूर करो। पैराग्राफ का प्रीव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि पैराग्राफ जो है वो पता चल जाता है कि भाई पैराग्राफ की का आइडिया क्या है, पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। ओके, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब हमारा काम है, हमने ये देखना है हमारे पास क्वेश्चन टाइप कौन कौन से हैं। तो देखो इसके अंदर 1 to 7 मेरे पास है ट्रू फॉल्स नॉन गिवन, और 8 to 13 मेरे पास WH क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन आंसर है। नो मोर देन 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड आंसर, और यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है। अब इन क्वेश्चन से मुझे पता चलता है कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। दो मेजर स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि हम रीडिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी कहलाती है स्किमिंग, दूसरी कहलाती है स्कैनिंग। स्किमिंग का मतलब होता है रीड फॉर मेन आइडिया, जब हम मेन आइडिया के लिए रीड करते हैं, और स्कैनिंग का मतलब होता है रीड फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर। तो आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, आई लेट यू नो अबाउट द लिस्ट एंड एवरीथिंग कि कौन से क्वेश्चन जो है वो स्किमिंग से होंगे और क्वेश्चन क्वेश्चन जो है स्कैनिंग। ठीक है, सही है सर। ओके। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये कि अगर आप ये देखें तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और इसमें वर्ड आ रहे हैं, ये सारे स्कैनिंग बेस्ड है। स्कैनिंग क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप देखें इसमें हमें वर्ड पिक करने हैं, और कीवर्ड्स पिक करके हमें पीछे टेक्स्ट में जाना है, और हमें सिर्फ वर्ड आंसर, 1 वर्ड आंसर निकालना है, और यहाँ पे हमें कंफर्म करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है नॉट गिवन है। देयर आर 2 मेथड्स, नंबर वन। अच्छा, दूसरी, इससे पहले मैं टेक्निक समझाने से पहले दो चीज़ें बताता हूँ। क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ना जरूरी है। क्या बताया मैंने? क्वेश्चन का एक क्वेश्चन एक का एक वर्ड। एक एक वर्ड, वन एवरी वर्ड, ईच वर्ड पढ़ना जरूरी है, ओके ओके ओके। ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन है। टेक्स्ट का एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट को तेजी से पढ़ो, स्पीड रीड करो। ठीक है, ताकि सिर्फ ये किस आइडिया तरह हो कि पढ़े सर, तेजी से? स्पीड रीडिंग होती है। ओके। स्पीड रीडिंग कैसे होती है ये मैं बता भी देता हूँ। अब ये लिखा है विलियम हेनरी पार्किन, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा विलियम बॉर्न मार्च लंदन इंग्लैंड, बॉय पार्किंग क्यूरियोसिटी प्रॉम्प्टेड इंटरेस्ट आर्ट साइंस फोटोग्राफी इंजीनियरिंग, was chance of stumbling upon run down functional laboratory, his late grandfather's home solidified, ओके, यंग मैन enthusiasm फॉर केमिस्ट्री। अब पता चल गया कि भाई एक बच्चा था जो कि इंटरेस्ट लेता था केमिस्ट्री साइंस में,
उसके दादा की एक लेबोरेटरी थी जिसके अंदर ये था। इसका मतलब विलियम हेनरी पार्किंग की पूरी स्टोरी होगी और सिंथेटिक डाई और केमिस्ट्री और केमिकल से रिलेटेड होगी स्टोरी। क्लियर? जी। ओके, सो फार सो गुड। जी सर। तो ये होती है जी। स्पीड रीडिंग। तो टेक्स्ट को हमने स्पीड रीड करना है और क्वेश्चन को हमने इंटेंसिवली रीड करना है, हर क्वेश्चन को, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टेक्स्ट। बस उस बात को याद रखो, क्वेश्चन सर इज ये मोर। 1 से 7 जो है, ये ऊपर वाली जो दिए हुए हैं, सारे पैराग्राफ जितने भी दिए हुए हैं उनमें से होगा? ये भी और ये 8 to 13 भी नहीं लिखा हुआ है ना बेटा। आप देखे ना, ये क्वेश्चन 1 to 13, 8 to 13 इस पैसेज से रिलेटेड है। ओके 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 सही है, तो सर। ये इससे होगा। अब ये आगे और जो है, उसमें सर जो सजेस्टेड टाइम है उतना ही स्पेंड करना है? जी बिल्कुल, उससे 1 मिनट भी ज्यादा मिलेगा भी नहीं और करना भी नहीं। अब देखो, ये देखो, रीडिंग पैसेज टू 14 to 26 जो है वो इस पैसेज से रिलेटेड हो। तो 14 देखो, 14 से 17 तक ये शुरू में ही आ गए क्वेश्चन। फिर देखो, ये 2 क्वेश्चन थे उसमें WH आ गए, फिर 3 यस नो नॉट गिवन, 4 यस नो नॉट गिवन आ गए। फिर ये नेक्स्ट पैसेज आ गया, इसके क्वेश्चन 27 से 40 तक हैं। देखो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि हम्म। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देखने चाहिए, ये भी देखना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स पिक करो, कीवर्ड्स जाके टेक्स्ट में जाके देखो कि वो कहाँ पर हैं। कीवर्ड्स उठाओ और फिर टेक्स्ट में देखो। तो अर्ली जो लिस्ट रीडिंग होती है उसकी जो टिप्स होती हैं वो यही होती हैं। पहली लिस्ट, सबसे पहले नंबर 1, स्टूडेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टेस्ट पैटर्न। टेस्ट पैटर्न पता होना चाहिए उन्हें, इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ना आना चाहिए। प्लस दे शुड एटलीस्ट बी एबल टू कॉरेस्पॉन्ड क्वेश्चन टू द टेक्स्ट। क्वेश्चन और टेक्स्ट को कॉरेस्पॉन्ड करना आना चाहिए। अब 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्किमिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन और स्कैनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो ये डिटेल कैनवस पे भी मैंने लिखी है। मैं अभी देखता हूँ मेरा कैनवस रिस्टोर हुआ है, वरना मैं आप लोगों को वैसे दे दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, स्किमिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या होते हैं और स्कैनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या होते हैं? स्किमिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें हेडिंग चाहिए होती है, कंक्लूजन चाहिए होता है, समरी सेलेक्ट करनी होती है। ये होते हैं, यानी इसका मतलब लिस्ट ऑफ हेडिंग। जो ये वाला क्वेश्चन देखो हमें नजर आया है, इसके अंदर हमें स्किमिंग हम्म। करनी है। तो ये स्किम करने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट 2 सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग, तो उससे हमें पता चल जाता है ये पैराग्राफ मेनली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अगर पैराग्राफ बहुत छोटा है तो आप पूरा पढ़ लो, सही है, क्योंकि आपके पास 1.5 मिनट होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम्म। लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ो, लेकिन ओवरऑल आइडिया जिस जिससे हेडिंग चाहिए होगी तो हमें स्किमिंग चाहिए। लेकिन बाकी कितने क्वेश्चन हैं? अब देखो, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, यस नो नॉट गिवन है, इसमें WH क्वेश्चन लाए हैं हम लोग। 1 वर्ड आंसर है, यहाँ पे भी 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर है। सही है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। तो ये स्कैनिंग है। स्कैनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? अब 71 का वर्ड उठाया हमने, टर्टल, टॉर्टोइज, टोटल ऑफ डैश, टोटल ऑफ डैश। अब हमें देखना है कि भाई इसमें कितने एग्जामिन हुए हैं। बोन्स, फॉर लिम्स, टॉर्टोइज। हम ये कीवर्ड उठा के पीछे जाएंगे और सर्च करेंगे 71 टर्टल, टॉर्टोइज। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑप्टेन 3 मेजरमेंट, टोटल ऑफ 3 आ गया यहाँ पे आंसर। क्विकली में आया, एग्जामिन टोटल ऑफ 3 वर टेकन फ्रॉम द बोन्स एंड फॉर। सही है। तो ये बड़ा क्विक होता है, अगर हमें कीवर्ड सही मिल जाते हैं हम फौरन जंप कर जाते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम लोगों को। विलियम हेनरी पार्किन था। माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज पार्किंस एबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। हम देखते हैं भाई माइकल फैराडे के बारे में क्या है। अच्छा जी, हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट वर प्रोवाइडेड बाय पर्सी बाय टीचर थॉमस हॉल। उसके टीचर ने किया था, थॉमस हॉल ने, माइकल फैराडे ने नहीं किया था। हिज टैलेंट, हिज इंटरेस्ट, एबिलिटी, टैलेंट की जगह एबिलिटी का वर्ड आ गया। पार्किन, हिज रिकॉग्नाइज, वहां पे उसने आइडेंटिफाई किया था। माइकल फैराडे गलत इन्फॉर्मेशन है तो ये फॉल्स है। इस तरह हमें कर, इज दैट क्लियर? हम्म। सही है। तो